مسیح یسوع کے زندہ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا رب کے ساتھ ہو۔ جی میں خدا کا کلام واز کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں اور لائک شیئر اور کمنٹس بھی کیا کریں، اور دوسروں تک بھی اس کلام کو جو ہے نا وہ شیئر کیا کریں، تاکہ دوسرے بھی اس کلام کی صورت سے برکت پائیں اور جو ہے نا نجات پائیں، تاکہ سارا عزت و جلال ہمارے خدا یسوع کے نام پر ہو۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، یعنی نجات کا کلمہ۔ اس کا نجات کا کلمہ تو میرے ساتھ نکالیے خدا کے بندہ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 23 باب، اس کی 39 سے 43 آیت تک ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے چھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے زندہ کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین، ہاللیلویہ۔ جی جیسا میں نے پہلے کلمے میں بھی بتایا تھا کہ خدا یسوع مسیح کو کسی نے صلیب پر نہیں چڑھا بلکہ وہ خود چڑھا۔ کیوں؟ ہمارے گناہوں کی خاطر، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ جیسا ہمارا ٹاپک بھی آج جو ہے وہ نجات ہے۔ تو دیکھیں میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی لٹکائے گئے، جو گناہگار شخص تھے، جو پیشہ ورانہ ڈاکو تھے۔ تو دیکھیں ایک ڈاکو خدا یسوع مسیح کو یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ خدا یسوع مسیح سے ایک بدکار ڈاکو خدا یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ اور ہمیں بچا۔ میرے عزیزو دیکھیں، لیکن دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا۔ ایک نے کہا، وہ خدا یسوع مسیح کو تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ ہمیں اور اپنے آپ کو بچا۔ لیکن دوسرا ڈاکو اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے اندر خدا کا خوف نہیں، حالانکہ اپنے گناہ کی سزا پا رہا ہے، لیکن یہ یسوع جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بے عیب بڑا ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا ہے، جو پیدا ہی نجات کے لیے ہوا، کیونکہ یسوع کا معنی ہے نجات دہندہ۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح بے عیب بڑا ہے، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا، جس نے ایک کم 40 کوڑے کھائے، سر میں کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے، مکے کھائے، منہ پہ تھوکا گیا، تاکہ میری اور آپ کی نجات ہو سکے۔ جو دروازہ میرے اور آپ کے لیے بند ہو چکا تھا ہمیشہ کی زندگی کا، اس دروازے کو یسوع نے کھولا ہے اپنے بیش بہا پاک مقدس لہو کے وسیلہ سے۔ اگر خدا یسوع مسیح اپنا پاک مقدس لہو نہ بہاتا تو آج میں اور آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے
वारिस ना बनते। मेरे अजीजों, आप मेरे यीशु के उस पाक मुकद्दस लहू की कदर को जाने जो पाक है, मुकद्दस है। जिस जिंदगी पर उस पाक मुकद्दस लहू का एक कतरा आ जाता है, वो जिंदगी निजात पा जाती है। वो जिंदगी मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी की वारिस बन जाती है। उस डाकू की तरह, जिस दूसरे डाकू ने कहा कि हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने गुनाहों का बदला पा रहे हैं। उसने अपने गुनाह का इकरार किया। आज देखिए, आज ताने देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करने वाले कम हैं। उस दूसरे डाकू की तरह, अगर मेरे अजीजों आप नजात पाना चाहते हैं, आप बहाली सरफराजी पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। खुदावंद आपको नजात देना चाहता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। आज आप सलीब पर लटकाए नहीं गए उस डाकू की तरह, लेकिन जब आप गुनाह करते हैं तो यीशु मसीह को आप इलानिया तौर पर मसलूब करते हैं, इलानिया तौर पर कोड़े मारते हैं, इलानिया तौर पर उसकी पसली में भाला मारते हैं, उसके हाथों पैरों में कील ठोकते हैं, उसके सर में कांटों का ताज पहनाते हैं जब आप गुनाह करते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं अब सबसे इल्तमास करता हूँ, उस दूसरे डाकू की तरह अपने गुनाहों का इकरार करें। तो देखिए खुदा ने उससे क्या कहा जब उसने इकरार किया। फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, क्योंकि वो जानता था कि यीशु बादशाह है, यीशु निजात देने की कुदरत रखता है, उसके पास ये अख्तियार है कि वो मुझे निजात दे सकता है, मुझे रहाई दे सकता है गुनाह से। तो मेरे अजीजों, आज हम यीशु के पास हैं, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। हम चर्च जाते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन अपने गुनाहों से इकरार नहीं, अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। इस डाकू से सबक सीखिए, जिसने स्लीप पर लटके हुए ने अपने गुनाहों का इकरार किया, और दूसरे डाकू को झिड़का कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, हम गुनाहगार हैं। तो देखिए, जब उसने कहा कि यीशु, जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना, तो देखिए खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। देखिए, आज अगर आप गुनाह में हैं तो मेरे अजीजों, आज आपके पास वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने होंठों से इकरार करें और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, जो आपको पूरी निजात देने की कुदरत रखता है। वो आपको निजात दे सकता है, क्योंकि वो हमारी निजात है। कुरान के जिंदा कलाम में से मेरे साथ एक हवाला निकालिए। अमाल उसका 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। मेरे अजीजों, यीशु ही दरवाजा है, यीशु ही निजात का जरिया है, उसके बगैर हम निजात नहीं पा सकते, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो, क्योंकि वो नाम यीशु नाम है। और एक और हवाला, अमाल 2 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, 31 आयत में, और यूं होगा कि जो कोई खुदा उनका नाम ले निजात पाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें खुदा उनके नाम को लेने की जरूरत है, उसको अपने दिल में जगह देने की जरूरत है। वो दिल के दरवाजा पर खटखटाता हमें पुकारता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं और तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं। तो मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास वक्त है, दिल से तौबा करें, होंठों से इकरार करें और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्स निजात देना करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है और हर एक के काम के माफी के देने के लिए अजर उसके पास है। वो अल्फ और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। तो खुदा इस कलाम की वजह से आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। तो मैं अब सबके लिए दुआ करूंगा। आसमानी खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्र की ताज़ीम करता हूँ, तुझे मुबारक, तुझे बुलंद वाला कहता हूँ कि तू
तूने हमें पूरी पूरी निजात दी खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ। हमारे उस मारूसी गुनाह से जो पुश्ता पुश्त नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारे साथ साथ रहता था, तूने हमें उस गुनाह से रिहाई दी, निजात दी खुदा, जो आदम और हवा ने बाग अदन में किया। तो खुदावन तेरा शुक्र हो, जिस तरह तूने उस डाकू से जिसने कहा अपने गुनाहों का इकरार किया और तुझसे माफी मांगी, और तूने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो मैं तुझसे मिन्नत करता हूं जो आज अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, तेरे सामने इकरार करना चाहते हैं, उन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। तू चाहता है कि हर फर्द बशर की नौबत तौबा तक पहुंचे और उस हमेशा की जिंदगी का वारिस बने जो तू देना चाहता है। तो खुदा एक एक को निजात दीजिए, निजात दीजिए, और खुदा एक एक को तौबा करने का फजल बख्शिए। और इसी में खुदा एक एक के लिए तेरे आगे मिन्नत इल्तमास करता हूँ, एक एक की तमाम बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ विसुख जाती रहे, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहे, भांज पानी यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह का भांज पानी यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की गुर्बत जैसी लानत यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की शुगर यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की गिल्टियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की रसौलियां यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम से जाते रहे, हर तरह की परेशानी यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, और मुकम्मल तौर पर हर तरह की नाकामी कामयाबी में बदल जाए, बीमारी शिफा में बदल जाए, लानत बरकत में बदल जाए, हर तरह का जादू तवीज काला इल्म यीशु के नाम से अभी इस वक्त जाता रहे, हर तरह की उस पुराने सांप अजदहा की दीदी ना दीदी कुव्वत यीशु के नाम से जाती रहे, और मुकम्मल तौर पर एक एक को बरकत और फतह से रिप्लेस कीजिए, और एक एक के घर में मोहब्बत, इत्मीनान और तसल्ली को लेके आइए, यूनिटी को लेके आइए, वफादारी को, पाकीज़गी को लेके आइए, और एक एक को बरकत दीजिए और फतह से रिप्लेस कीजिए, और एक एक के चुगिर तेरे पाक रूहुल कुद्स की बात, तेरी शिर अज़म दुआ की बात चाहता हूँ, और मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम इदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पाक आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पुलिस के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम पास्टर साहिबान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुबश्शिरों के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, खादम खादमाओं के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और एक एक के लिए तेरा आसमान खुल जाए जो तेरा अच्छा खजाना है, और एक एक पर अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दीजिए, ताकि सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह नासी के नाम को। आमीन।